all. I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is programming in Q Basic. So let's begin here. कंप्यूटर क्या है, आपकी एक स्मार्ट मशीन है, बट स्टिल उसको क्या चाहिए होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है और कोई स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है. और प्रोग्राम्स किसके थ्रू होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होते हैं. सो वी नीड अ लैंग्वेज. उसके लिए हमें किसी से भी बात करनी होती है, हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है कन्वे करने के लिए अपने मैसेजेस को. सेम एज हमें अगर कोई मैसेज कन्वे करना है अपने कंप्यूटर तक का, वी आल्सो नीड अ लैंग्वेज which computer can understand to compile a program. This language is called a programming language. जो हम कंप्यूटर के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज करते हैं, that is known as programming language. क्यूबेसिक क्या एग्जांपल है आपकी किसका, प्रोग्रामिंग. क्यूबेसिक क्या एक इजी टू लर्न है एंड इजी टू यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, लूप स्ट्रक्चर्स को. In this chapter, simple concept of conditional statement and loop structure and graphics, loop structure graphics commands will be introduced to you. कि conditional statement क्या होता है, loop structure और graphics क्या होते हैं. Now let's talk about conditional statement. A statement which allows the programmer to include a condition in a program. check allow करता है programmer को include करने के लिए, उसमें एक कोई भी condition आप include कर सकते हैं program में, उसको conditional statement कहते हैं. A number of statement in QBasic like if, then else, if, then else, if. ये क्या है आपकी conditional statements है. If, then की condition हो गई ना. Allows us to include in conditions in program code when the computer evaluates a condition is as true. अगर computer evaluate करता है कि condition आपकी true है, मतलब सही है, जो the control of execution is transferred to one group of statement. जो control होता है कि execution को, वो transfer हो जाता है एक group of statements को. और condition evaluates to false. The control is transferred to alternate groups of statement. control आपका transfer भी हो जाता है alternate group of statements पे भी. Now let's understand this with the help of flow chart. ये क्या आपका start है, then statement, condition है आपकी false या true, statement 2 execute, statement 1 execute. Now let us learn some more about the different types of conditional statement. If then की statement है तो क्या होगा. If then statement specify रहता है condition if keyword in case of condition evaluate to be true. अगर आपकी condition evaluate होगी true आती है तो the execution is transferred to the statement that lies immediately after the then keyword. तो condition का आपकी execute हो जाती है, transfer हो जाती है जो एकदम then keyword के बाद immediately lie करती है. So condition evaluates to be false. अगर आपकी condition evaluate होती है false आता है तो the control is transferred to the statement that follows the. वो कहाँ पे transferred हो जाती है, जो statement follow करो था is then block of statements. So syntax क्या होता है, if condition then statement and statements. This is the single line syntax for writing. if ये single line syntax है if लिखने के लिए, then statements को if condition then statements and if. This is a multiple line syntax for if. ये multiple line syntax है if के लिए, then statements. Here mentioning and if is a must. यहाँ पे mention करना and if कोई must है. Example CLS input enter your marks in percent marks. If marks is smaller than greater than 33%, अगर आपके greater than 33%, so you are pass. print होगा आपका you are pass. Now if then else statement, if then else statement is used to execute a statement only when the condition mentioned with the if keyword evaluate to be true. जो condition mention है वो true आए. When the condition is false, अगर आपकी condition false है, statement allow करते हैं execution of alternate statements की. So if condition then statement 1 else statement 2 and if. It's second so example CLS input enter your marks. आपको marks enter करना in percent marks. If marks is greater than 33% है, आपके marks greater than 33% है, then print you are pass. it print हो जाएगा you are pass. else नहीं, अगर कम है तो you are full and if. So एक third condition है हमारी then if then else if statement. The if then else if statement is used to test multiple conditions in a program. ये use करती है, मतलब use होती है test करने के लिए multiple conditions को एक program में. If condition then statement 1, else if condition then statement 2, else if condition then statement 3 है आपका else. If and else you can use any number of else. आप कोई भी number use कर सकते हैं else if statement का to test and many conditions
एज रिक्वायर्ड, अगर आपकी प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है वो आप टेस्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूपिंग स्ट्रक्चर. In programming, you may want to repeat the execution of certain statements many times. आपको बहुत बार सेम situations का repeat करना होता है execution certain statements को बहुत बार. So, but for this you also will not have to write programs again and again. आपको बार बार programs को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Looping structure help करता है आपको programmers को इस type के issues में कि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े. Looping is defined as a process of repeating a series of statement as many times as needing. ये क्या होता है looping का मतलब? ये ऐसा डिफाइंड एक प्रोसेस होता है जो रिपीट करने का सेम स्टेटमेंट को as many times as needed, जितनी बार भी हमें ज़रूरत होगी. There are mainly four types of loops. Four types के loops होते हैं. If go to, while when, go do loop, for next, if go to. So to execute if go to loop, you need to tell to the computer the initial value. आपको कंप्यूटर को एक initial value बतानी होती है. कब स्टार्ट करना है लूप को, what to do, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कोई ऑपरेशन, कंपेयर करना है रिजल्ट्स को टू द टारगेट सेट, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है. Go to beginning of or to the end, या तो beginning में जाना है या end में. Syntax होता है if condition, then go to statements. ये आपका एग्जाम्पल है इसका. ये आपकी इनपुट स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है. जो आपने इनपुट दिया है ये आपका आउटपुट आएगा. So QBasic is more limited version of QBasic. QBasic क्या आपकी more limited version आपका Quick Basic का, कुछ कब रिलीज हुआ था, ये 1985 में रिलीज हुआ था. While when command continue a loop until a specified expression is false, जब तक आपका specified expression false ना आ जाए. To execute while when loop, you need to tell the computer. आपको कंप्यूटर को क्या बताना होता है? Place an expression above after while. एंटर करना होता है एक लिस्ट ऑफ कमांड्स, प्लेसमेंट एट द एंड, प्लेस करना होता है व्हेन फुल एंड में. सिंटेक्स व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट व्हेन. ये आपका एग्जांपल है यहाँ पे इसका, यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम है. QBasic वाज इंक्लूडेड विद विंडो 95 एंड MS DOS. किससे इंक्लूडेड? विंडो 95 से और MS DOS से. डू लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाइल व्हेन. ये किसकी तरह सेम है? एग्जैक्टली व्हाइल व्हेन की तरह सेम है, एक्सेप्ट दैट इट हैज एट लीस्ट टू एडवांटेजेस. उसके दो एडवांटेजेस होते हैं. Loop until an expression is true. loop करना आप until जब तक expression आपका true ना आ जाए. Loop at least one time regardless of whether the expression is true or not. To use do loop, you need to tell to the computer को बताना होता है whether the loop continues while the expression is true. आपको loop continue करेगा जब आपका expression true है, or until the expression is true using the while and until statement prospectively. प्लेस करना होता है एक्सप्रेशन आफ्टर वाइफ और अंटिल. एंटर द लिस्ट ऑफ कमांड्स. आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स एंटर करना होता है. प्लेस लूप एट द एंड. आपको लूप को प्लेस करना होता है एंड में. सिंटेक्स डू व्हाइल अंटिल कंडीशन. सो ये प्रोग्राम यूज होता है व्हाइल स्टेटमेंट. दिस प्रोग्राम यूजेस अंटिल स्टेटमेंट्स. ये आपके इनपुट स्क्रीन है ये दोनों, एंड दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन. सो QBasic वाज इंटेंडेड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ GW बेसिक. ये किसने इंटेंडेड, क्या इंटेंशन था इसका, मतलब रिप्लेसमेंट था ये GW बेसिक का. और नेक्स्ट प्रोवाइड्स एन इजियर वे टू क्रिएट अ लूप. ये इजियर वे प्रोवाइड करता है लूप को क्रिएट करने का. सिंटेक्स इसका फॉर काउंटर्स इक्वल्स टू स्टार्ट TO एंड एंड स्टेप्स इंक्रीमेंट. नेक्स्ट काउंटर सी द एग्जांपल शोन. एग्जांपल से इनपुट स्क्रीन के या आउटपुट स्क्रीन के. द X आफ्टर नेक्स्ट इज ऑप्शनल. जो X होता है आपके नेक्स्ट के बाद वो ऑप्शनल होता है अनलेस यू हैव अ लूप विद ना लूप. हाउ टू एग्जिट फ्रॉम लूप. अब कैसे एग्जिट करता है लूप से? To stop a loop prematurely, use the exit command. आपको exit command को यूज करना होता है जो किससे फॉलोड होती है, इधर for और do से. जो this command only works with the do loop. ये किससे वर्क करती है? do loop से. For next command not with while when or if go to. Syntax exit for do. See the example. ये example से input screen का output screen के. QBasic commands. Programs are built up with a set of instructions. किससे build up है? Set of instructions और commands से. Every programming language has its own syntax. हर programming language का एक अपना syntax का rules होता है, commands होती है. Commands है QBasics and their function. The following commands do not need line numbers. इन commands को line numbers नहीं चाहिए होते. List, run, ls, lprint, new, system, print, ncls, rme, save and load. So, लिस्ट क्या होता है? द कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन. किससे यूज होते हैं? लिस्ट करने के लिए प्रोग्राम्स को आपकी स्क्रीन पे. रन, ये रन करती है आपके एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को. एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है लिस्ट. दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द प्रोग्राम एज अ हार्ड कॉपी. ये लिस्ट करते हैं आपको प्रोग्राम को एक हार्ड कॉपी की तरह. lprint, दिस कमांड इज यूज्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द हार्ड कॉपी. इसलिए यूज होती है हार्ड कॉपी पे आउटपुट लाने के लिए.
प्रोग्राम का न्यू, दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द मेमोरी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ये किस लिए यूज होती है? क्लियर करने के लिए मेमोरी आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की। सिस्टम, दिस कमांड इज यूज टू टेक योर बैक टू द DOS प्रॉम्प्ट। ये कहाँ ले जाती है? आपको वापस DOS प्रॉम्प्ट को ले जाती है। प्रिंट एंड CLS कमांड्स कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट अ लाइन नंबर। कमांड्स यूज होते हैं लाइन नंबर के बिना। प्रिंट इज यूज टू व्यू द डिस्प्ले। किस लिए यूज होते हैं? व्यू करने के लिए डिस्प्ले को स्क्रीन पे। एंड CLS इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। और CLS किस लिए यूज होती है? क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। RMA, दिस कमांड इज यूज टू शो द पोजिशन ऑफ द मिस्टेक। ये किस लिए यूज होती है? शो करने के लिए पोजिशन आपकी मिस्टेक की। सेव, द कीवर्ड इज यूज टू सेव अ प्रोग्राम। कीवर्ड किसका यूज होता है? सेव करने के लिए आपके प्रोग्राम को। एग्जाम्पल, सेव प्रोग्राम 1, QBasic विल ऑटोमेटिकली ऐड अ पीरियड। QBasic ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा पीरियड। एंड एक्सटेंशन होता है इसका .bas। द फाइल नेम, लोड क्या होता है? द कीवर्ड इज यूज टू लोड एनी प्रोग्राम। ये कीवर्ड होता है लोड, ये आपके किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के लिए यूज होता है फ्रॉम डिस्क टू द मेमोरी। एग्जाम्पल है लोड प्रोग्राम 1, आपके प्रोग्राम 1 को लोड कर देगा। World's first supercomputer was known as 305 RAMAF, was launched by IBM। किसने लॉन्च? IBM से लॉन्च हुआ था। कब? 1956 में आपका 305 RAMAF लॉन्च हुआ था। Some other QBasic commands, कुछ और भी QBasic की कमांड से delete, running a program, writing a new program and exiting a QBasic। To delete a line number in a program, for example, delete 10 will be delete the line number। जो delete 10 है वो delete करेगा line number को 10। delete 30, 50 will delete all lines। जो 30, 50 सारी लाइंस को डिलीट कर देगा जो बिटवीन आपके 30 से 50 के बीच में। running a program, run command is the command used to execute any program। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, to get the output on the screen, जिससे आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ जाए। राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम, एक न्यू प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं? इफ इट इज पॉसिबल टू ओवरराइट लाइन विद द न्यू स्टेटमेंट, बट इफ यू वांट टू राइट टोटली न्यू प्रोग्राम, अगर आपको टोटली एक न्यू प्रोग्राम लिखना है, यूज द न्यू कमांड। आपको न्यू कमांड को यूज करना होता है। एग्जिटिंग QBasic कैसे एग्जिट करते हैं? इफ यू वांट टू एग्जिट द QBasic प्रोग्राम, सिस्टम कमांड इज यूज। क्या यूज होता है? सिस्टम कमांड यूज होता है। HP, Microsoft एंड Apple हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है इसमें। क्या कॉमन जो है? दे वर ऑल स्टार्टेड इन अ गैराज। ये कहाँ स्टार्ट हुए थे? गैराज में स्टार्ट हुए थे। नाउ राइटिंग अ प्रोग्राम, कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को? राइट अ प्रोग्राम इन QBasic, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1 क्या है? आपको एंटर करना होता है प्रोग्राम। एंटर द प्रोग्राम नाउ, कहाँ पे? इन द प्रोग्राम अपर विंडो, प्रोग्राम की अपर विंडो में। आफ्टर लॉन्चिंग द QBasic इंटरप्रीटर, यू माइट सी अ विंडो रिक्वेस्टिंग अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर। आप देखोगे आपके एक विंडो रिक्वेस्ट करी होगी, क्या? लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। इफ दिस विंडो कम्स अप, अगर ये विंडो आपके सामने आती है, स्टेप 2 होता है आपको एंटर करना होता है की टू कंटिन्यू। आपको प्रेस करनी होती है एंटर की कंटिन्यू करने के लिए। यू एंटर नाउ, सी द QBasic इंटरप्रीटर विच हैज अ ब्लू बैकग्राउंड, जिसका ब्लू बैकग्राउंड है, एंड डिस्प्ले करता है डायलॉग बॉक्स आपके सेंटर पे। द इंटरप्रीटर फिल्स द एंटायर स्क्रीन। अगर आप इंटरप्रीटर फिल कर रहे हैं एंटायर स्क्रीन को, देन यू मे वांट टू प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर। आपको ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना होता है इसको स्मॉलर करने के लिए। स्टेप 3, प्रेस द S की। आपको S की को प्रेस करना हाइड करने के लिए डायलॉग बॉक्स को। स्टेप 4 क्या? टाइप द फॉलोइंग। आप फॉलोइंग टाइप करना होता है, लाइक प्रिंट, इंक्लूडिंग, इसमें कोटेशन मार्क्स भी होता है आपके QBasic इंटरप्रीटर में, लाइक प्रिंट हेलो, आपके कोटेशन उसमें आ गया हेलो वर्ल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ग्रेटर देन, प्रेस एंटर, स्मॉलर देन। सो स्टेप 5 क्या? आपको F5 की को प्रेस करना है रन करने के लिए अपने प्रोग्राम को। यू शुड नाउ सी अ ब्लैक स्क्रीन। आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, हेलो वर्ल्ड एट द टॉप। हेलो वर्ल्ड कहाँ पे आएगा? टॉप पे लिखा हुआ एकदम। फिर आपको प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एट द बॉटम। आपको कंटिन्यू करने के लिए कोई भी की को प्रेस करना है। स्टेप 7, प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड टू रिटर्न टू द मेन स्क्रीन। आपको एक की प्रेस करनी है अपनी मेन स्क्रीन पे वापस आने के लिए। फिगर है, ये आपको क्या डिस्प्ले कर रही है? आउटपुट स्क्रीन है। द आउटपुट स्क्रीन में शो एज गिवन बिलो लाइक दिस। आपको कर सकते हो कोई भी की कंटिन्यू करने के लिए। So the house where Bill Gates lived was designed using a Macintosh computer। जो जहाँ पे बिल गेट्स रहते थे तो वहाँ किसने कैसे डिजाइन हुआ था? क्या यूज करके? मैकिन्टोश कंप्यूटर को यूज करके। अब डिलीटिंग द प्रोग्राम, कैसे डिलीट करते हैं प्रोग्राम को? टू डिलीट द फाइल प्रोग्राम, फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट आपको फाइल मेन्यू पे जाना है, फिर आपको क्लिक करना है न्यू पे। द इंटरप्रीटर आस्क्स इफ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम। इंटरप्रीटर से पूछता है कि आपको सेव करना है या प्रोग्राम? आपको सेलेक्ट करना होता है नो, और इफ यू हैड रेदर कीप द प्रोग्राम, सेलेक्ट यस। अगर आपको चाहिए
तो आप फिर yes पे भी कर सकते हो select. So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.